Good morning, students. Today we are on fifth lecture of basic concepts of chemistry. In this part, we will discuss about empirical formula, molecular formula, and their determination. In the beginning of this chapter, we had discussed about laws of chemical combinations, and in our last lecture, we had discussed about mole concept. So mole concept again play a very important role during determination of molecular and empirical formula. Molecular and empirical formula. What is empirical formula? The simplest whole number ratio of atoms present in a compound is called empirical formula. And actual whole number ratio of atoms present in a compound is called molecular formula. For example, we can see C6H12O6. We know very well it is glucose, molecular formula of glucose. But the empirical formula of glucose is CH2O. It is simplest possible ratio between carbon, hydrogen and oxygen in case of glucose. The normal actual ratio is 6:12:6. This is actual ratio. So when such ratio represent in the formula, such formula will be termed as molecular formula. But the simplest ratio is 1:2:1, CH2O. So it represents empirical formula. Molecular formula, empirical formula. Isn't it? So I think it is very much clear. किसी भी compound के लिए. Okay, it is also possible. Sometimes molecular formula and empirical formula might be same, क्योंकि उनमें कोई और difference हो नहीं सकता. For example, H2SO4. So the ratio is, this is mole ratio. एक है, if there is one atom, so it is 1. अगर एक atom है तो एक का consider कर लिया जाएगा. So it is the ratio 2:1:4. We cannot simplify it. So the empirical formula and molecular formula for this compound will be same, right? So एक भी हो सकते, एक जैसे हो भी सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं. Remember it. And these are relation between molecular formula and empirical formula. You can see in this example also, it is empirical formula, right? So the molecular formula क्या relation हो जाएगा? Molecular formula is equal to empirical formula and whole n. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी for this case 6. So molecular formula is equal to empirical formula. अगर हम इस केस में देखें, so molecular formula अगर हमें पता करना और empirical formula we have CH2O whole 6. So what we will get? C6H12O6, right? So this is n. If we have molecular formula mass and empirical formula mass, then we can calculate that n also. If we get n, then we can calculate molecular formula also. Right? The steps how we could determine empirical formula and molecular formula. So the steps are there. First step is generally we would get that elements in percent. अगर weight में है तो it is far good, लेकिन अगर generally हमें percentage में देखने को मिलता है,
right? So if we get weight about information about element in percentage, it is somehow this percentage, like मैं एक example दे यहाँ लिख देता हूँ, we have carbon, एक compound है हमारे पास, we have carbon around 40%, right? We have hydrogen around 6.7%, right? And if we have that oxygen, जनरली कई बार ऑक्सीजन के बारे में नहीं बताया जाता, तो जो रिमेनिंग हो जाएगा वो ऑक्सीजन हो जाएगा. सो वी हैव ऑक्सीजन अराउंड 53.3%. ओके, सो जनरली इस फॉर्मेट में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. अगर वेट में गिवन है तब तो कोई इशू ही नहीं है, अदरवाइज हम क्या करते हैं, वेट इन 100 ग्राम फाइंड कर लेते हैं अगर इफ परसेंट में गिवन है, राइट? तो इसीलिए लिखा हुआ है. अदरवाइज अगर डायरेक्ट वेट दिया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, जो वेट गया है उसे ही आप यूज कर सकते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट, है ना? तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है? सो कंसीडर करते हैं और उसके हिसाब से वेट रखते हैं. डायरेक्टली वेट इज गिवन और फ्रॉम समवेयर यू कैलकुलेटेड वेट, इन दैट कंडीशन आप यहाँ पुट कर सकते हैं डायरेक्ट वेट, राइट? देन आप उसका मोल निकाल लीजिए. 40 डिवाइडेड बाय 12, 6.7 डिवाइडेड बाय 1. हाइड्रोजन मोल कैसे निकालते हैं, वेट अपन मोलर मास, and 53.3 divided by 16, so we would get moles. Afterwards mole ratio, so जो लीस्ट मोल्स होंगे उनसे सबको डिवाइड, रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे कम वैल्यू को जिससे सब डिवाइड हो जाए, तो सबसे कम वैल्यू से सबको डिवाइड कर देते हैं, राइट? सो मोल रेशियो, सो जो लीस्ट वैल्यू से हम सारे मोल्स को डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल रेशियो मिल जाएंगे. अगर वो इंटीजर नहीं है तो आपको एक ऐसा नंबर चूज करना पड़ेगा जो सबसे मल्टीप्लाई करें और वो इंटीजर भी हो जाए, तो इंटीग्रल मोल रेशियो हमें मिल जाएगा. और एक बार अगर हमें इंटीग्रल मोल रेशियो मिल गया, एक बार अगर हमें इंटीग्रल मोल रेशियो मिल गया, सो वी कैन ऑल्सो जो भी हमारे पास नंबर से यहाँ मिल रहा है, लेट एक्स वाई जेड हमें मिल रहा है, तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला वुड बी इक्वल टू, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो सी एक्स, ठीक है, एंड वी सी एक्स एच वाई, राइट? जो भी हमें मिल रहा है, एक्स वाई जेड जो भी हमें मिल रहा है, एंड दैट ओ जेड, इजंट इट? तो इस तरीके से हमें ये तीनों मिल जाएंगे, एक्स वाई जेड. यहाँ पर हमें एक्स मिल गया, वाई मिल गया, जेड, तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया. एंड इफ वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिकुलर फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला का मास ही मिल जाएगा, मॉलिकुलर फार्मूला का मास ही मिल जाएगा, एंड देन वी कैन गो थ्रू दिस. सो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एन मिल जाएगा, एंड वी कैन कैलकुलेट इट. Isn't it? Let me go through this example also. So weight हमें मिल गया as it is 40 and 6.7. हमने 100 obviously अगर 100 में देखेंगे तो परसेंटेज 100 में ही होता है, तो 53.3, right? Now अब मोल निकालना है तो क्या करेंगे, 40 डिवाइडेड बाय 12, तो हमें मोल्स मिल जाएंगे. इसी तरह 6.7 डिवाइडेड बाय 6.7 डिवाइडेड बाय 12, ओके. और इसी तरह से हमें क्या मिलेगा, 53.3 डिवाइडेड बाय 16, राइट? तो हमें मोल्स मिल जाएंगे. कितना हो जाएगा मोल्स, तो अगर हम देखें, सो इट इज अराउंड 12 into 36 एंड रिमेनिंग, सो 3.33 ये रहेगा. मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ओके. सो ये क्या हो जाएगा, 3.33, ओके. इसको अगर देखें तो इट इज ऑलमोस्ट इट इज 6.7 बाय 1 ना, तो इट रिमेन 6.7, है ना? 1 से डिवाइड किया हुआ, शायद मैंने कुछ गलत लिखा था. एनीवेज, एंड 16 into 48, so it again remain as 3.33, राइट? ठीक है. ये भी अगर हम देखें तो 6.6 के आसपास ही होता है. एनीवेज, अब हम क्या कर सकते हैं, 3.33 से तीनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो व्हाट वी वुड गेट, 1, इट इज ऑलमोस्ट 2 एंड इट इज अगेन 1. सो अब इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और इंटीग्रल मोल रेशियोज हमें क्या मिल जाते हैं, 1 to 1.
और अब यहाँ वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, सो इट इज 1, राइट, एंड इट इज 2 एंड इट इज 3, ठीक है ना। अब हमने तीनों को यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजंट इट। हम तीनों के लिए यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमें सॉरी इसका कितना मिल रहा है, 1 ना, वी वुड गेट 1 फॉर इट, सॉरी 3 मैंने लिख दिया, सो मैं उसे कन्वर्ट कर देता हूँ, सो वी वुड गेट 1 फॉर इट ऑल्सो, है ना, ओके, राइट। सो C1H2O1 हम CH2O भी लिख सकते हैं, राइट। लेट इफ वी हैव मोलर मास, अगर हमारे पास मोलर मास ऑफ द कंपाउंड है, हमने कहा कि भाई मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 60, लेट वी हैव एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में हमने कहा कि मोलर मास जो कंपाउंड है हमारे पास, जिसके हमने परसेंटेज दिया, उसका मोलर मास कितना है, 60 है, राइट। लेट वी हैव मोलर मास 60, अगर हम इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जिस कंपाउंड को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिस कंपाउंड के हम डिटर्मिनेशन कर रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, सो लेट वी हैव molar mass of compound 60, अगर हमारे पास कंपाउंड का मोलर मास कितना है, 60, इन दैट केस एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, सो CH2O, वी नो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O, तो C is 16 plus 2 C is 12 plus 2 plus 16, so what it be, 30. Now so N is equal to, as we know, molecular formula mass divided by empirical formula mass, हमने देखा ना, N is equal to क्या, molecular formula mass divided by empirical formula mass, right. So molecular formula mass and empirical formula mass, तो N is equal to क्या हो जाएगा, molecular formula हमने निकाला, molecular formula mass we have N is equal to 60 and empirical formula mass we got 30, so it is 2. So what will be the molecular formula of the compound is, so molecular formula is equal to empirical formula into N, as I already said. So molecular formula is equal to CH2O into N, and N की वैल्यू 2 है ना, तो it will be C2H4O2. This will be molecular formula of the compound. Isn't it? So by this way we can easily calculate. So this is the way how to calculate empirical formula and molecular formula of the compound. ठीक है, अगर कभी इंटीजर बनाने की जरूरत पड़ती है तो वी कैन ऑल्सो मेक इट लाइक, हमें कई डिफरेंस मिलता है, जैसे हमें किसी कंडीशन में देखने को मिलता है कि 1.5 आ रहा है मोल रेशियो, राइट। अगर वी हैव गेट 1.5 मोल रेशियो, इन दैट केस व्हाट वी डू, इन दैट केस 1.5 आ रहा है तो हम जितने भी मोल रेशियो है सबको इंटू 2 कर देंगे, तो बाकी तो इंटीजर में है तो वो इंटू 2 हो जाएंगे, और 1.5 विल ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड विद 2, इट विल कन्वर्ट इंटू 3, 1.5 इंटू 2, इजंट इट। सो आसानी से आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। So remember it. Now, so this is about empirical formula and molecular formula. बिल्कुल यही मेथड यूज करनी है जब भी आप कैलकुलेट करें, बहुत ज़्यादा राउंड फिगर नहीं लेना है, आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, आप सॉल्व करिएगा, विल डिस्कस इन क्लास, अगर कोई डाउट होगा तो, ओके। नाउ सो दिस इज अबाउट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, लेट वी सी, फॉर एग्जाम्पल, वेट अ मिनट,
Wait a minute. If we have a compound, let we have a compound in which percentage of iron, ठीक है, percentage of iron is wait a minute 48. So in a compound, let we have percentage of iron is 70%. ओके, एक कंपाउंड है हमारे पास जहां पे हमने क्या लिया है, परसेंटेज ऑफ आयरन इज 70%. ओके, आयरन, द मोलर मास ऑफ आयरन इज 56. ठीक है, सो वी हैव अ परसेंटेज ऑफ आयरन इज 70%. ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 30%. ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 30%. राइट, नाउ वी हैव टू फाइंड दैट now we have to find empirical formula for this compound, right? Need to find empirical formula, need to find empirical formula. तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं. तो पहला स्टेप क्या करना है, तो 70 ग्राम आयरन है हमारे पास एंड 30 ग्राम हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है. तो ये पहला स्टेप हो गया. फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे. तो मोल्स ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, 70 डिवाइडेड बाय 56 एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 16. राइट, सो 70 डिवाइडेड बाय 56 कितना हो जाएगा, 70 डिवाइडेड बाय 56 कितना हो जाएगा, 1.25. सो मोल्स ऑफ आयरन विल बी 1.25. राइट, एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी, so let we divide mole for moles of oxygen, so 30 divided by 16, 30 divided by 16, so that will be moles of oxygen will be 1.875. right, अब हम थर्ड स्टेप्स पे आ जाते हैं, मोल रेशियो. तो मोल रेशियो के लिए क्या करेंगे, लीस्ट कम वाला ये है तो इससे अपन डिवाइड कर देंगे दोनों को. सो मोल रेशियो फॉर आयरन कितना हो जाएगा, इट विल बी 1.25 डिवाइडेड बाय 1. ठीक है, एंड द रेशियो फॉर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो 1.875 डिवाइडेड बाय 1.25, सो इट विल बी 1.5. सो हमारे पास 1 एंड 1.5 हमें क्या मिल गया, इनके मोल रेशियोस मिल गए. इजंट इट. नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमारा फोर्थ पॉइंट, अगर इंटीजर होता जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो वी डायरेक्टली यूज दैट, लेकिन यहाँ इंटीजर नहीं है तो कन्वर्ट इनटू इंटीजर. तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को 2 से कोई भी एक ऐसा नंबर, इसमें ऑब्वियसली मिनिमम नंबर होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, जितना कम से कम नंबर पॉसिबल हो. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड HCF, है ना. सो F रेशियो O, सो क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 एंड इट विल बी 3 व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 2. यानी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1.5 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से. तो ये हो गया 2 और ये 3, तो क्या बन गया, Fe2O3. सो वी हैव इंफॉर्मेशन एंड वी गॉट Fe2O3 एम्पेरिकल फॉर्मूला. इजंट इट. सो ऐसे भी हम स्टेप्स लगा के कंप्लीट कर सकते हैं. तो दोनों तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, चाहे हम टेबुलर फॉर्म में करें चाहे ऐसे करें, बट द स्टेप्स आर सेम. right, so remember this is very important part. ठीक है, thank you for today.